Hello and good morning, all of you. I welcome you all to the Raftar Daily Current Affairs series presented you by Alpha IS Academy, and we are here to help you in any way. And we shall now begin for the day. Quickly, we'll see the first news of the day, that is National Land Monetization Corporation. This is being set as a government-owned firm. Okay, this will be wholly owned by the government, and it will be under the administrative jurisdiction of फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आएगा. वट इट विल डू इज़ कि भाई सरकार का बहुत सारा लैंड कहीं 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 पड़ा रहता है. ठीक है, अब लैंड का हाउ मच रेट्स इट हैव. ओके, एंड the government has surplus land at many places. What they will do is that they will make a data of all this land and monetize it. कहीं पे रेंट पे दे देंगे, कहीं पे लीज पे दे देंगे, कहीं बेच देंगे, एंड दिस विल हेल्प इन अचीविंग दी दिस investment target by the government, and it will also help in strategic disinvestment. Thus, this is how National Land Monetization Corporation will help the government. See here, state government will disinvestment. ये यहाँ पे ये बैंक है. ठीक है, ये सब लैंड यहाँ पे इसके पास आ जाएगा, फिर ये अपने हिसाब से मोनेटाइज करता रहेगा उसको आगे. उससे क्या होगा, इट विल हेल्प इन जनरेटिंग रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट ऑल्सो, एंड दिस इज़ हाउ इट विल हेल्प गवर्नमेंट. It is under the financial administrative control of finance ministry. बस याद रखना. Now Indian tea will be also be hit by the Ukraine Russia conflict. Now this shows how integrated the world economy is. A problem in a certain part of the world affects the trade and economy of another part of the world. Thus, quickly we'll see that India is the second largest producer of the tea, and of course, no need to say, India is the largest consumer in the world. है ना, हम लोग चाय कितना पीते हैं, बल्कि कितने स्टार्टअप्स बन गए हैं. चाय सुट्टा बार, चाय बार, चबार, चाय चुस्की, है ना, एंड नंबर ऑफ स्टार्टअप्स आर देयर in the name of chai itself. Thus, India is the largest consumer of the tea in the world and the second largest producer of tea after China. See, these are the major growing regions. हिमाचल, उत्तरांचल मेनली स्लोप्स पे होता है, जहाँ आपको हिल्स मिलेंगे. हिल्स के स्लोप्स में होता है, क्योंकि यहाँ पे इसको जो है वाटर स्टैग्नेशन नहीं चाहिए होता. तो आपको हिमाचल, उत्तरांचल, वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, उड़ीसा, तमिलनाडु, दिस इज़ द पार्ट ऑफ नीलगिरी एरियाज, कर्नाटका. ठीक है, एंड द मेजर 3 प्रोड्यूसिंग रीजन्स आर दार्जिलिंग, दैट इज़ इन द नॉर्थ ईस्ट, असम अगेन इन द नॉर्थ ईस्ट, एंड नीलगिरी इज इन द साउथ इंडिया. एंड you won't believe me, and of course it is written here also, that you taste the tea of all these 3 regions, they will smell and they will taste differently. So this is the beauty of our country, and this is how the diversity should be appreciated. देखो, हम चाय कितने टाइप की है, अरे दुनिया क्या देगी यार हमें, हम दुनिया को देंगे. इतनी टाइप की चाय ही बनाते हैं हम लोग कि देखो, मतलब आप, मैं तो देखा ये बोर्ड्स लगे रहते हैं जो चाय वाले स्टार्टअप्स हैं, मतलब 100 150 टाइप की टी देते हैं, कार्डमम टी, ये टी, वो टी, जिंजर लेमन हनी टी, मतलब मस्त रहता है. एंड आई जस्ट अ लिटिल मूव, आई मूव आउट ऑफ द टॉपिक. व्हेन यू गो टू लबासना, you do a 5 kilometer trek from there, you will reach a place called Char Dukan in Landor. The banana pancakes plus the ginger lemon honey tea of that place is very very awesome. तो ठीक है, मतलब कुछ नहीं करने के लिए वहाँ इस चाय को पीने के लिए पढ़ लो. ठीक है, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, कंडीशंस फॉर टी ग्रोथ इज, first is climatic condition. Of course, it is a tropical and subtropical plant and grows well in hot and humid climate. हल्की हल्की बारिश चाहिए होती है, वाटर स्टैग्नेशन नहीं चाहिए होता है, इसलिए स्लोप्स पे पाया जाता है. इट रिक्वायर्स रेनफॉल ऑफ 150 to 300 सेंटीमीटर एंड अ टेम्परेचर ऑफ 21 to 29 डिग्री सेल्सियस, आइडल 40. सॉइल इसको थोड़ी सी एसिडिटी की चाहिए होती है, कैल्शियम नहीं चाहिए उसमें. फर्टाइल सॉइल विद लाइम एंड आयरन प्रेफर की जाती है, और ह्यूमस में रिच होनी चाहिए. ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब देख लेना इसको. द PDF is also uploaded on the Telegram channel, and please go there and have this beautiful PDF. It is available for you for free, and our team puts a lot of effort in making it, and I would request you to at least go through it. This PDF is available there. You can just go through in
लाइक 8 मिनट्स वीडियो इज़ वीडियो एंड 10 मिनट्स यू कैन गो थ्रू, और 20 मिनट्स में आपको करंट अफेयर्स डेली का तैयार हो जाएगा, कितना कुछ सीखने को मिल जाएगा, है ना, याद भी रहेगा। देखो मैं आपको 4 दुकान की स्टोरी सुना दी, और क्या चाहिए यार आपको, है ना। नाउ कमिंग टू द शॉर्ट न्यूज़, WHO Global Center for Traditional Medicines in India. Now this is the first of its kind. It is being opened in Jamnagar, of course, under the Ministry of Ayush, and it focuses on traditional medicine by the name itself, as the name itself suggests. Second is National Bank for Financing Infrastructure and Development. अब देखो RBI के अंडर ना there is something called as AIFI, that is All India Financial Institutions. There are already 4 financial institutions under it. Now more is being added, that is National Bank for Financing Infrastructure and Development, NABFID बोलेंगे इसको, ठीक है, and of course it will be regulated under RBI Act 1934. Now what it does is that it provides a long term finance, जहाँ बैंक और कमर्शियल बैंक नहीं लोन दे पाते बड़ी बड़ी कंपनियों को, जहाँ इतना बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, फिनेंस देना, उसको ये चीज़ देती है। तो अब इसको एक RBI जो है इसको रेगुलेट करेगा। It will be governed by the board of directors and chairpersons appointed by the central government after the consultation of RBI. So nice. Now the endurance, this is the more of PCS question. The endurance क्या है? Lost vessel of Antarctic explorer Sir Ernst Shackleton was found at the weekend at the bottom of the Weddell Sea. Just wait out for 30 seconds, we'll see the map of Weddell Sea. Don't worry. ठीक है, एंड कुछ नहीं होता। द शिप वॉज क्रश्ड बाय सी आइस एंड सैंक इन 1950। तो कुछ टाइटेनिक टाइप का हुआ कि डूब गई शिप, और एक एक्सप्लोरर थे सर अर्नेस्ट, उनकी वेसल थी, तो अब मिली है जाके 1915 2022 में, ऑलमोस्ट लाइक 107 ईयर्स के बाद। विल सी वेयर द वेडल सी इज। द प्लेसेस इन द न्यूज इज अमेजोन फॉरेस्ट। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज, सी भाई हम डेवलपमेंट कर रहे हैं ना बॉस, डेवलपमेंट की कॉस्ट बहुत दे रहे हैं हम लोग, तो सोचना होगा एक बार उस जगह पर रुक के सोचो। मैं बोलता हूँ डेवलपमेंट करो बट इन्वायरमेंट को भी बचाओ। अब देखो हो क्या रहा है, हुआ क्या है कि दी इंस्टेड ऑफ टेकिंग द कार्बन डाइऑक्साइड, अमेजन फॉरेस्ट आर एमिटिंग द कार्बन डाइऑक्साइड। भाई फॉरेस्ट को तो हम कार्बन सिंक बोलते थे, अगर यही कार्बन सिंक नहीं करेंगे तो ये तो पूरा कार्बन हो जाएगा, है ना। तो दे हैव स्टार्टेड एमिटिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो वेयर आर अमेजॉन रेन फॉरेस्ट आर, कुछ नहीं है, ये आपका देखो ये ब्राज़ील है, ये पेरू है, इक्वाडोर, ऑलमोस्ट ऑल साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ में फैला हुआ है, कोलंबिया है, वेनेजुएला में, वेनेजुएला का ये लग रहा है यहाँ पे गुआना, सूरीनाम। तो क्या हुआ इससे मैप भी वो हो गया, देखो ये आपका बोलिविया, पैराग्वे, ये चिली साइड में ऐसे ऐसे चिली की शेप का, चिली कंट्री है, अर्जेंटीना नीचे, तो ऊपर से हम चालू करें तो वेनेजुएला, कोलंबिया, फिर गुआना इधर आ गया, सूरीनाम, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली। अगर हम इसका आपका ये वेस्टर्न कोस्ट देखें तो वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू एंड देन चिली। बीच में देखें तो लैंडलॉक्ड बोलिविया, पैराग्वे, अर्जेंटीना, ये आपका ब्राज़ील है, ठीक है। और इधर आपका ईस्टर्न कोस्ट पे वेनेजुएला, गुआना, सूरीनाम, ठीक है, और इधर आपका ब्राज़ील आ गया। दिस इज़ हाउ यू शुड लर्न दी मैप। तो थोड़ा डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत तो आ ही जाएगा, है ना। सो दिस इज़ वाई इट वॉज इन न्यूज़। नाउ अभी हमने 2 मिनट पहले पढ़ा कि भाई वो अपने बॉस सर अर्नेस्ट की सिंह डूब गई थी विडल सी में। तो विडल सी कहाँ है, देखो टू द वेस्ट ऑफ इट इज़, टू द ईस्ट ऑफ इट इज़ अंटार्कटिका। विडल सी, आई एम सो सॉरी, it is located between land boundaries of the Antarctica Peninsula to the west. Antarctica Peninsula it's to the west and coastland is to the east. यहाँ पे कुछ कहीं पे साइड में कोट्स लैंड है। तो ये विडाल सी, देखो ये अंटार्कटिका है पूरा हमारा, ठीक है, और ये हल्का सा ऊपर यहाँ पे इसका वेडल सी है। वेडल सी में ही वो जो शिप सैंक हो गई थी वो मिली है हमें। तो आई थिंक दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। हैव अ वेरी नाइस डे, हैव अ वेरी फैंटास्टिक डे, टेक care of your health, keep smiling, bye bye, tata, and we shall see you soon, take care.